बैठ जाओ रे। हाँ बस भाई सब लोग पीछे आ जाओ। पैसे ले आभार आपका दुकान यहाँ पे सुनील सर राइट है ना, ये राइट सर यहाँ पे सर लेफ्ट। इधर लीजिए पहले एक साथ में ये साइड आ गया अन्ना अन्ना सेंटर में। हाँ बस सोलो बहुत तकलीफ होता है। हाँ हमको धूप में बहुत तकलीफ होता है हमको बहुत। अन्ना ये राइट में अन्ना राइट में नहीं देता। अन्ना समोस हो गया ना ये सब लोग लुक ओवर है और यहीं से करते हैं। अरे यस ये बात चैनल जूम करना बैक हो गया। गाड़ी में काम गाड़ी पांडे को ग्रुप में डाल देना। ये एक और ये एक तरीके में यहाँ यहाँ पर बस बस एक मिनट मुझे भी वो वाला मैनेज करने आ रहा है।
एक इधर बैकड्रॉप है तो वेरी गुड वही है हाँ भाई लेफ्ट में देखो गणेश भाई उठना लेफ्ट में देखो सर राइट सेंटर अन्ना थोड़ा स्टैंडिंग ऐसे ये बात तो कैमरे में बटन भी दिया अन्ना थोड़ा another center मस्त है बहुत मुश्किल से आप कहीं जाते हैं और किसी भी ब्रांड का हिस्सा बनते हैं क्या खास आपको लगा and you are here for the brand? I think an obsession with sunglasses and an obsession with this concept. बहुत पहले से हम सोच रहे थे कि ऐसे कुछ करना चाहिए और जब मौका मिला इनके साथ जुड़ने का I thought it was the best because I think Spectra is आप collection भी देखोगे तो Japanese से लेके American brand से लेके Italian all the brands that work internationally are very much a part of this. बहुत सारे ऐसे brands हैं शायद जो आपको कहीं नहीं मिलेगा इंडिया में जो exclusively Spectra के साथ हमारे साथ जुड़े हुए हैं तो I think anything to do with fashion, anything to do with style, though I'm very traditional when it comes to all that, but love to be a part of it. You was one of the style icon in the industry come out और we have seen you ना चाहे Right. फिटनेस की मैं बात करूँ Right. कौन इतना फिट होगा हाँ वो तो है तो क्या सजेशन देना चाहेंगे और will be the targeted audience if you can ask? I think anybody who believes he wants to dress differently, anybody who believes that they have a style of their own, anybody who believes that I want fashion that is, the numero uno in the world today. I think those are the people who like to dress well and of course who want to protect their eyes with these beautiful glasses. See, it's for me, I'm an aviator guy. I love aviators. Whether it's rimless frames or otherwise, I stick to something that is aviators, which is traditional. But Tia is always wearing different kind of glasses. Ahan loves stuff that is so different. So I think it covers everybody. Okay, what to say? Anna is here support and he is there for the launch. कितने गौरव की बात है कितने चाव की बात है he support Anna's been with us for quite a long time, more than 15 years, and we've always been trying to do something different. I think with Spectra we've cracked something really unique. We've got a collection of brands that even stores in Europe don't have together in one location, and we want to bring the best of style to India, and Bombay is the fashion capital. And with Anna's support, I think we'll really take it places. It means we'll see more of Bollywood people returning here at this place because, as you said, I'm sure that's it. Edgy. It's edgy. It's different. So if anybody wants something that is different, you don't have to travel internationally. And trust me, the pricing also. The pricing is also extremely competitive. You'll probably get it in the same price anywhere else in the world. But then why travel when you can get it here? And for movies, it is finally a style statement. It makes a hell of a lot of difference. So of course. Okay, Ahan is doing his debut. If you Right. talk about Ahan, I think Ahan is blessed. I say blessed because he's got Sajid Bhai as his mentor. Now after Sajid Bhai, he's got Milan. Someone whom I've always admired as an actor. I've always thought that Milan की एक फिल्म में का हिस्सा होना बहुत ज़रूरी है क्योंकि he presents you like a man. And again, RX100 is a cult love story, a true story. Rajat doing the dialogues of the film. So when you have Sajid Nadiadwala as his mentor, Nadiadwala grandson as the promoters, as the producers, and Vardha as the producer, you have Milan as the director, you have Rajat writing it. All he needs to do now is work hard, work bloody hard, and give his best. Be honest, be sincere with his work, and rest. Lady Luck smiles on him, he's set. any tips you have given to him? Yeah, be honest to your work. Love your producer like you would love nobody else. क्योंकि पैसे सिर्फ वो डालता है. और unfortunately हमारी दुनिया में producer को हम
प्रोडक्शन मैनेजर की तरह ट्रीट करते हैं, यू नो, और जो आज लोगों को पता चल रहा है कि हाउ इम्पोर्टेंट सेविंग इज़, हाउ इम्पोर्टेंट मनी इज़, सो आई थिंक these are the only things I tell him, and then go with your gut feeling. सब्जेक्ट के साथ जुड़े रहना और जो भी करो सिंसियरली करो और कम काम करो और लिव लाइफ किंग साइज। ओके, दिया मिर्जा ने हाल ही में एक बयान दिया है जब पूरे के पूरे इंडस्ट्री से लोग पीएम नरेंद्र मोदी से जाके मुलाकात करी और फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े मुद्दों की बात हुई, कैसे और सुधार करा जा सकता है। दिया ट्वीटेड कि एक महिला को भी इंडस्ट्री से होना चाहिए था। व्हाट्स योर टेक ऑन दैट? एब्सोल्युटली, आई थॉट इट वाज, आई डोंट थिंक इट वाज इंटेंशनल, बट महिला का होना बहुत ज़रूरी है। और जब आप महिलाओं को इतनी इम्पोर्टेंस दे रहे हो और हर पोजीशन पे वो है, तो उनका रहना बहुत ही ज़रूरी था। प्रॉब्ली इम्प्रॉम्प्टू होगा और इसलिए हुआ निगलेक्ट, बट इंटेंशन आई एम श्योर वाज नेवर दैट गुड। बॉलीवुड इज ऑलवेज लाइक अ फैमिली, यू नो, अनगिनत लोग, टेक्नीशियन हो, फिल्म स्टार हो, सिनेमाटोग्राफर हो, एडिटर हो, सब एक फैमिली की तरह रहते हैं और हम देखते हैं बीइंग एंटरटेनमेंट जर्नलिस्ट। नसीर साहब को लेके, नसीर साहब के बयान को लेके जो विवाद खड़ा हुआ है, इससे पहले आमिर साहब ने कुछ कहा था और फिर अब नसीर साहब ने कहा है। अन्ना, क्या कहना चाहेंगे इस तरह के जो विवाद खड़े जाते हैं? डू यू एग्री बॉलीवुड इज ऑलवेज अ सॉफ्ट टारगेटेड फील्ड? Yes, but it's not, it's one probably individual who twists and turns it and edits it the way they want and presents it the way they want that makes the difference. अभी हाल ही में मैंने कुछ कहा था विराट के बारे में, तो मैंने नसीर जी भाई के अगेंस्ट कुछ नहीं कहा था। मैं विराट के, आई वॉज इन फेवर ऑफ विराट, तो ओपिनियंस अपने अपने होते ही है ना, एवरीबडी हैज़ देयर ओन ओपिनियंस एंड आई फेल्ट विराट्स अप्रोच इज फैंटास्टिक टू क्रिकेट। लेकिन कोशिश तो यही रही कि ये बोलना कि सुनील शेट्टी इज गॉन अगेंस्ट नसीर भाई। मुझे किसी के अगेंस्ट जाने की ज़रूरत ही नहीं है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं किसी के साथ अग्री करूं और उनके सपोर्ट में कुछ कहूं। मेरा सपोर्ट इज टू विराट एंड आई लाइक हिम एज अ क्रिकेटर। Okay, the last one, we met yesterday somewhere in South, Nasir Saab, and he said, I stand what I said, and he said कि being a Muslim, if you express anything, एक मिनट में आप गद्दार हो जाते हैं अगर आप अपनी दिल की बात रखते हैं। I don't think it is being a Muslim or being a Hindu or being a community wise. I think being an actor हमको एलियनेट करते, हमारी बातें नहीं सुनते, जो बहुत बुरी बात है। हम कुछ भी करें तो गलत, और you know, so that's the problem. ज़रूरत हमारी सब जगह, पॉलिटिक्स में हो, स्पोर्ट में हो, चैरिटी में हो, किसी भी चीज़ के लिए एक एक्टर बिना सोचे आगे आ जाता है, लेकिन जब उसको लटकाना होता है कितनी आसानी से लटका भी देते हैं। So that is the sad part. So I think that's what Nasir Bhai is trying to say, you know, and I think somewhere down the line he is right कि हमें एक्टरों को क्यों लटकाया जाता है हमेशा, हम क्यों सॉफ्ट टारगेट्स बनते हैं। देखिए, मेरा एक ही मानना है, ये शायद इसीलिए होता है क्योंकि सोशल मीडिया बहुत ही पावरफुल है। मेरी ज़िंदगी में मैंने कभी लाइक्स के बारे में बॉदर नहीं किया, मैंने रिस्पेक्ट गेन करने की कोशिश की, और रिस्पेक्ट आपको सिर्फ निजी ज़िंदगी में मिलता है, सोशल मीडिया पे नहीं मिलता। तो जितनी ज़रूरत है वहीं हम उतना ही करें तो अच्छा है। आज के बच्चों को पता ही नहीं कि रियल वर्ल्ड क्या होता है, कि कैमरामैन कौन होते हैं, ये बच्चे जो आप लोग जो काम करते हो कितनी मेहनत होती है उसमें, एक सेकंड में निकल जाते हैं बिना हाय हेलो भी बोले हुए, क्योंकि उन्हें कहा जाता है, उन्हें सिखाया गया कि स्टे अवे एंड यू विल बी मोर एक्सक्लूसिव, बट टू ईच इज ओन एंड व्हाट कैन आई से। आने वाला है, क्या रेवोल्यूशन है इस साल का? इस साल का कुछ नहीं, और फिट बनूंगा और ज़िंदगी जीऊँगा, खुश रहूँगा, कॉम्प्लेक्स किसी का है नहीं, अपनी दुनिया में हूँ और खुश हूँ और वैसे ही रहना चाहता हूँ। So guys, all you guys who are watching, Merry Christmas and a very very Happy New Year. Genuinely इस साल को आप हैप्पी बनाइएगा। हैप्पी न्यू ईयर का मतलब है हैप्पी रहना, तो रेजोल्यूशन कुछ भी हो, हैप्पी रहना। Thank you. Thank you.
बोलो हाँ बोल ना हाँ बोल 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 फोटो 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 अरे या ओके सर थैंक यू अरे आपण निकालेगा आपण कम कम मस्त बाबूरावच्या मस्त हे केलं अक्षय कुमार पण संगीत पाहिजे होता आणि बाबूराव पण चालू का नाही निघाल ना